हमने दो प्रोग्राम्स कल लिस्ट से रिलेटेड इम्प्लीमेंट किए थे, एरे 1 एंड एरे 2। सो फर्स्ट 5 मिनट एक बार थोड़ा सा ब्रशअप कर रहे हैं लिस्ट के टॉपिक को, और फिर आज एरेज, जो पाइथन का एरेज है उसके टपल्स और डिक्शनरी टॉपिक्स को कवर अप करने का शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले एक न्यू फाइल बनाते हैं एरे 3 के लिए, और जो कल हमने लिस्ट समझा था उसको एक बार कंसाइज फॉर्म पे एक ब्रशअप ले लेते हैं कि लिस्ट हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे थे। सो हमने यहाँ पर इसे नेमिंग प्रोवाइड करवाया, एरे 3_prg.py, and right click with the Python IDLE. सर वॉइस नहीं आ रही। So initially सबसे पहले import sys, और अभी लिस्ट के ऊपर ही हम एक इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम। जैसे कि लास्ट वेबिनार में हमने समझा था, लिस्ट को बनाने के लिए हमने एक नेमिंग इम्प्लीमेंट किया, नेम वेरिएबल like my data collection equals to, so the name of our array, name of our list is my data collection, and square bracket is required for the list, and data हमने यहाँ पर जैसे कल हमने कुछ सिटी के नेम्स लिखे थे, सो मैं कुछ कलर्स के नाम लिख देता हूँ, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। और क्योंकि कलर्स के नाम हैं, सो मैं डेटा की जगह इसको नाम कलर दे देता हूँ, माय कलर कलेक्शन। सो द नेम ऑफ द लिस्ट इज माय कलर कलेक्शन and the values are red, green and blue. There are 3 elements in our list starting from index number 0, 1 and 2. और कल हमने print दो तरह से समझा था कि either we can write the entire collection, my color collection, or either we can print as per our need and requirement, my color collection square bracket for positioning and 1. Here 1 represents the green, 0, 1 and 2. So here 1 represents the green part, green color, and as well as we can include a color name. This color name is the static text before the color. It's a label verb before the value of index number 1. It's a label before the index number 1. Then we have discussed yesterday that this list is editable. This list is editable. It means if we want to replace any collection value, so it is possible for us to replace the value and the value becomes yellow. And if we display the same position again, so of course we are going to get different output. Let's open the line number. So in a line number 8, output must be green. In a line number 12, the green output is replaced with yellow, because in a line number 10, we have replaced the index position 1 value. So just save this program and run. So the expected outputs are, in a 7th line is going to display the entire array. Line number 8 only displays the green, position number 1. And in line number 12, we have a replaced value yellow, because in a line number 10, we have replaced this value. So I think this program is clear to all of you. And ये कल का ही था part, nothing new. कल हमने पूरा discuss किया था. इसमें एक चीज आज अप्लाई करते हैं, अभी डिस्कशन भी चल रहा था पंकज सर के साथ. So एक प्रिंट लिखते हैं जहां पर हम माय कलर कलेक्शन को रेंज के थ्रू डिस्प्ले करेंगे.
where our range starts with 1 and the 1 represents the green, but our range ends at, like 0 is a red index position, 1 for green and 2 for blue. If I write 2, so it starts from 1 up to 2, means we are going to get a single value because it starts from the 1, we got green, but it is not going to cross the index position 2 because this is called the up to length 2. So of course the output must be yellow in this case because value of index position 1 is replaced by line number 10. So the output we are going to view in this particular print statement is yellow. So let's check this one, and then we are going to extend this position. Save and run module. So the last output is yellow because it starts from the index position 1 up to 2. But what happened if we extend this 2 to 3? 3 means the index position up to. As per our list, we have a limitation of bounds. The bounds in our array is 0th bound, first and second index position. We have only 3 positions: 0th position, first position, and second position. There is no third index position. So let's try with this whether it is working. If it works, first let me clear. If it works, it means this 3 represents the index minus 1, size minus 1. Then we extend this with 4 and we check whether we are getting error or we got a proper output. So here we got that the first output index position 1 is yellow up to 3. So in between 1 and 2, in between 1 and 3, there is a index position 2 also exists where we have a value blue. Now try this again with index position 4. 4 is not a part of our array. Even 3 is also not a part of our position. So I think this one must be going to display an error. So just copy this one. If we talk about this, it's working. If I talk about this particular statement is working. What about if we extend, if we cross the limit of our array indexing? Save and run. So it's halt on index position 2. Means if we write any index position which is not a part of our array, so our interpreter is not going to prompt any error, but it limits the position to the last index number. Clear this one? Yes, sir. ठीक है सर, ठीक है पंकज सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जो अपने को चाहिए था वो काम कर रहा है आराम से, है ना? अच्छा विशाल जी, इंसिस्ट वन मोर थिंग, इसको एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्या ये रिवर्स रेंज लेता है? 3 to 1 लेगा? अपोजिट ऑर्डर में देगा क्या? ट्राई करते हैं सर. इफ आई राइट 3:1, तो रिवर्स प्रिंटिंग के लिए ट्राई करते हैं. सेव एंड रन मॉड्यूल. नहीं सर, ब्लैंक दिखा रहा है. हाँ ठीक है, नहीं लेता. रिवर्स प्रिंटिंग करनी है. तो ये तो कल तक का हमारा छोटा सा ब्रश अप. रिवर्स प्रिंटिंग के लिए शायद माइनस लेना पड़ेगा. विशाल सर, हाँ जी सर. विशाल, अगर इसमें 3 रोज, अगर ऐसा, ये मतलब ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट रो के 3 कॉलम ले रहा है? नहीं, तो अगर हम वो है तो ये इंडेक्स पोजीशनिंग की, और नॉर्मली हम लोग जब भी रेंज की बात करते हैं तो मोस्टली वो रेंज हम लोग स्मॉलर टू हायर की तरफ ही आगे बढ़ते हैं ना. नहीं विशाल जी, अगर हम सेपरेट लोकेशंस लेंगे तब दे देगा, मुझे लग रहा है. हाँ, अगर हम, है ना, सेपरेट लेंगे तब वो रिवर्स ऑर्डर, वो इंडिविजुअली जब देंगे हम लोग. विशाल सर, हाँ जी सर. यदि हमें रिवर्स में प्रिंट करवाना हो तो माइनस में इंडेक्सिंग देने से काम बन जाएगा क्या? नहीं, माइनस करेंगे तो इंडेक्स के बाउंड्स के बाहर की बात होगी ना. इंडेक्सिंग तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होती है ना.
ओके है ना, वो तो एरे के रूल्स के अगेंस्ट चला हाँ, गया। नहीं नहीं, सही सही, की तो बात नहीं कर सकते। हाँ सही है। ही इज राइट, ही इज राइट। ठीक है Great. सर, ठीक है So सर, आगे बढ़िए आप तो जी। करते हैं सर आज। So our next topic starts with tuple. So इसे क्लोज करते हैं और a new fresh program. सर इन पाइथन इट वर्क सर। माइनस यदि लेंगे ना, -1 यदि देंगे तो लास्ट पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है ना उसको डिस्प्ले करेगा। बट वो लास्ट अच्छा, पोजीशन आएगी ना सर। जी जी जी, लास्ट पोजीशन से आएगा हाँ। हाँ वो, लेकिन वो ये ना, वो पोजीशन लास्ट चला गया उस पे, बट लॉजिकल नहीं रहा ना वो पार्ट। वो तो इंटरप्रेटर ने उसको बाइफरकेट किया, बाईपास किया यूजर फ्रेंडली करने के लिए, बट लॉजिकल वो पार्ट नहीं रहा ना अपना। So up next program starts with tuples. So go to the new and text array 4 underscore pr array 4 underscore prg dot py and open with IDLE. First is import sys, and now a new fresh program is based on a topic tuples. So the first thing I want to write about the tuple is a read-only array. Read-only array. So like in a list, we can replace any index position value. In list array, it is possible to replace the index position value, but in case of tuples, we are not supposed to change the index positions. It's a freezed array. Once we declare this array, we cannot replace any value. And there is one more difference between the tuple and list, that while creating a list, we have square brackets, but while creating a tuple, we have a traditional method called parenthesis. In case of tuples, we have a parenthesis, but in case of list, we are using a concept called hard brackets. So to declare any tuple, like I have declared my collection, the name of the tuple is going to be my collection. My collection equals to like a round parenthesis, and in a collection I'm going to write like Ford, Maruti, and Honda. Company names, automobile company names, and another my collection 2 is equals to my collection 2 is equals to square bracket with red and green and blue. So first we are going to write a type command to identify the type of both types of collections. In the first one, we have used round parentheses. In the second one, we have used hard brackets. So here we have a print command with type of my collection, bracket close, and again print with type round parentheses my collection 2. So let's check the types of our both collections, because the only difference is round parentheses to the hard brackets. So we switch to file and save, go to the run and run module. So the first type is a tuple because we have used a round parenthesis, and the second type is list because we have used hard brackets. So these are two different array types in Python. Then if I write print
of my collection and bracket close with the save and print module. So here we have Ford, Maruti and Honda with a round parenthesis because this represents the tuple. This represents the tuple. And similar, you all are aware about the list. Of course, we are going to get a hard brackets with single quotes also. Collection. Next one, in the next process, if I want to display them individually, so we have a print with like car 1 and comma my collection. Of course, we have to display the value. So in an initial instance, it looks that we are going to use round parenthesis with 0 because we have to display the position, and to declare our tuple, we have round parenthesis, but positioning are always represented with hard brackets in a case of tuple or a list. Whenever we talk about collecting our data from array with the help of positioning, we have to mention square brackets. So initially लगता है कि हम round parenthesis use करेंगे index position के लिए, but array का ही rule है कि हमें यहाँ पर use करना होगा hard bracket position को mention करने के लिए, और 0th position पे है Ford. So car 1 पे हमें output मिलेगा Ford, and इसे ही copy किया और इंडिविजुअली हमने इसको 1 और 2 कर दिया. अभी लूपिंग स्टार्ट नहीं करा है, किसी वजह से इंडिविजुअली इन इंडेक्स पोजीशंस को मेंशन कर रहे हैं. अगर लूप हो जाता तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम मेंशन कर देते, जो कि इसे आपके लूपिंग के थ्रू, रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट कर देता. So here we have a 3 bifurcated outputs with our collection tuple. So save and run module. So here we have a bifurcated part with the help of position 0, position 1 and position 2. The next case in the same one, like we have seen in a last class, that our list is editable, and even we have seen today's lecture also, we have replaced the green value with yellow. हमने green को yellow से replace किया था जहाँ पर हम outputs view कर रहे थे. तो list में editing possible है, but tuple is read only. So try करते हैं इसकी value को change करने में. So हमने यहाँ पर लिखा है my collection, position को mention किया हमने 2 और 1 जो कि है मारुति. हमने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया 1 जो कि है मारुति, और उसे रिप्लेस कर दिया हमने टाटा से. सो हमने यहाँ पर यूज किया फर्स्ट पोजीशन को रिप्लेस करने के लिए, जिसे हमने रिप्लेस कर दिया है मारुति को रिप्लेस किया है टाटा नेम से, और उसके बाद फिर से इस पूरे कलेक्शन को डिस्प्ले करवाते हैं. सो हमने इसको किया सेव और रन. सो होंडा तक तो डिस्प्ले हुआ ये प्रॉपर, क्योंकि लास्ट आउटपुट था लाइन नंबर, ओपन द लाइन नंबर, लास्ट आउटपुट था लाइन नंबर 17 तक. उसके बाद आया है एक एरर, क्योंकि पता है हम रीड ओनली, ये एरर आना था क्योंकि हम रीड ओनली एरे को एडिट करना चाह रहे थे. सो एरर भी इसी तरह का आया है लाइन नंबर 19. ऑफ कोर्स यू कैन easily view line number 19 we have did this editing, so it is also prompting the file eDrive Python webinar array 4 line number 9 in a module collection Tata. The tuple object does not support item assignment. You cannot assign any item because it is read only. I think ये clear हुआ आप सबको? Yes, sir. Yes, Sir. Great. So इस तरह से डिफरेंस. हाँ जी.
सर टपल में यूजर से इनपुट ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप टपल में यूजर से इनपुट लेने के लिए, चलिए एक ट्राई करते हैं आज। एक बहुत ही, मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया। जब हम यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं ना, तो इस यस वैल्यू सर। को चलो यूजर से मजा आएगा ये प्रोग्राम बनाने में। ये तो क्लियर हो गया ना? यस सर। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, ये मजा आएगा। अपन यहाँ पर इनपुट लेते हैं यूजर से। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वन। सो इसको एग्जिट करते हैं। ये तो नोट कर लिया, मतलब क्लियर हो गया प्रोग्राम सबको। अब हम अगले यस पे सर। जाते हैं। विशाल जी, विशाल जी, हाँ जी सर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मान लीजिए हमको ऐसा करना हो यहाँ पर, हमको हाँ हाँ। मारुति हैज टू बी रिप्लेस विद टाटा, तो क्या नहीं नहीं, इसको तो फिर आपको, दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या इसको, टपल को? हाँ एग्जैक्टली सर, है ना? आपको या तो ओके। टपल दोबारा बनाना पड़ेगा। हाँ और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके एरे में, सिंपल सा है सर, अगर आपको लगता है कि आपके एरे में एडिटिंग होनी है, तो हाँ। आप उसको टपल ना बना के उसको लिस्ट बनाओगे। नहीं, मान लीजिए टप्पल ले लिया मैंने, उसके बाद हाँ भी करना है, तो दिस इज द ओनली वे कि वी हैव टू डिक्लेयर दिस माय कलेक्शन अगेन, है ना? ओके ओके सर। entire you have to redeclare this in this format। और मारुति की जगह उस पे क्या लिखेंगे? टाटा। ओके तो तब ये सर मतलब possible tuple is a read only form of list like है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स ने पूछा, एक इनपुट ट्राई करते हैं और यहाँ पर इनपुट्स को हम प्रोसीड करवा देते हैं। सो सेव किया इसे और एग्जिट, और एक न्यू प्रोग्राम बनाते हैं, टपल विद यूजर एंट्री, टपल इम्प्लीमेंटेशन विद यूजर गिवन एंट्रीज। सो array 5 underscore prg dot py। so ideally and import sys and सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया my collection and equals to bracket। अब ब्रैकेट के अंदर हमने दिया इनपुट ब्रैकेट एंड एंटर फर्स्ट कलर नेम, first prompting comma, then again enter second color name, first color name, and enter second input bracket double quotes, enter second color name, and let's try with only two। ब्रैकेट खत्म ऑफ इनपुट, ब्रैकेट खत्म इस कलेक्शन का, एंड एंटर। सो दो हमने कलेक्शन यहाँ पे लिए हैं। हमने यहाँ पे दो कलेक्शंस, दो इनपुट लिए हैं, मतलब माय कलेक्शन का 0th पोजीशन और माय कलेक्शन का 1st पोजीशन। और इसके बाद इस पूरे कलेक्शन को प्रिंट करवाते हैं, माय कलेक्शन को प्रिंट करवाते हैं। सो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। सो चलिए इसको व्यू करते हैं। सो प्रॉम्प्ट हुआ, एंटर द फर्स्ट कलर नेम, हमने लिख दिया है ग्रीन, एंड सेकेंड कलेक्शन नेम इज रेड। इसमें मैंने ये सेपरेटर नहीं दिया था, तो जस्ट ये बाइंडेड फॉर्म पे दिख रहा है। इट वर्क्स कि जब आप एक टपल या लिस्ट इवन बना रहे हैं और आपको उस टपल या लिस्ट में यूजर वैल्यूज को इनपुट लेना है, सो आप टपल बनाते वक्त इनपुट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इस तरह से एक एंटर करके मैंने गैपिंग देकर एक और इनपुट ले लेते हैं, क्योंकि कई बार पाइथन में गैपिंग्स एंटरिंग स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने वाली बात कहलाती है। सो एक बार ये ट्राई करते हैं, हो सकता है कि ये एरर दिखा दे। किस वजह से? क्योंकि मैंने एंटर कर दिया है एरे के बीच में और सेमीकोलन तो है नहीं, तो कई बार वो एंट्री को, तो मैंने इसके बाद एंटर बटन प्रेस किया, बट आउटर ब्रैकेट अभी भी रिटेन्ड है। सो इनपुट लेते वक्त मैंने इसे अलग अलग लाइन पे इनपुट लिया है, मतलब फर्स्ट इनपुट फर्स्ट पोजीशन,
as per logic, it's a 0th position, it's a first position and second position, and this is the binding of your entire collection. So save and run. It works. So red, green, and yellow. So this is the way how we can declare our, even you can declare list with this concept also. I think we have to just replace this square bracket, round parenthesis with square. So it becomes list. If we bind this collection with round bracket, that's a tuple. If we bind this bracket with square bracket, it's a list. Let's try this program execution also. So check that the list is also accepting the inputs or not. Save and run. So again, red, green, and yellow. So same pattern. So in both cases, either in a part of list or either you are declaring a tuple, you can accept the data from the user also. So let's replace it with the tuple. I think this program is clear. Yes, sir. सर एक चीज पूछना थी। हाँ जी सर। इसमें सर जो अपना जी एडिटर है, इसमें अभी जो अपन फॉन्ट्स लिखते हैं वो अलग अलग कलर के आ रहे हैं। हाँ, अभी आप जैसे होता है, ये कल बताया था, कॉन्फ़िगरेशन आईडीएलई ऑप्शंस के अंदर कॉन्फ़िगर आईडीएलई, यहाँ पे जाके आप अपनी सेटिंग्स डिफाइन कर सकते हैं कि फॉन्ट, हाइलाइट्स, की, ये सब किस तरह के आपको चाहिए। ये हाइलाइट्स पूरा आ जाता है कि कौन सा कलर स्कीम किस चीज के लिए चाहिए, कीज, जनरल एक्सटेंशंस, ये आप सब नहीं सर, मेरा पूछने का मतलब ये था कि जैसे अपन इसमें कोई एरर, आपकी ये एरर सिंटेक्स की कोई एरर होती है तो ये क्या अपने आप कलर चेंज करते हैं या इस चीज को सिग्निफाई करते हैं किसी तरह से? इंटरप्रेटर है, जब आप रन करोगे तब वो दिखाएगा। हाँ, अच्छा, हाँ, इंटरप्रेटर है, तो इंटरप्रेटर को जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब वो प्रॉम्प्ट करेगा। अब एक्चुअली जैसे डॉटनेट की बात करें तो डॉटनेट का क्या है, जो उसका जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है वो अपने इंटरप्रेटर को एक्टिव रखता है व्हाइल राइटिंग अ सोर्स कोड, इससे वो डिटेक्ट कर लेता है। बट इन केस ऑफ पाइथन इट इज नॉट एक्टिव व्हाइल वी आर राइटिंग आवर सोर्स कोड। यस वो वही मैं चीज एग्जीक्यूटेड। ठीक सर। हाँ सर, ठीक सर। तो अब जैसे कल एक रेंज का पार्ट था लिस्ट में, तो वैसा ही रेंज का पार्ट ऑफ कोर्स टपल पे भी सपोर्ट करता है। अगर हम लिखें प्रिंट विद माय कलेक्शन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट और रेंज हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है 0,2, तो ऑफ कोर्स इस केस में जो आउटपुट हमें मिलेगा 0 पे होगा फर्स्ट कलर, 1 पे होगा सेकेंड कलर, और अप टू 2 मीन्स सेकेंड इंडेक्स पोजीशन के पहले तक जितना भी आउटपुट है वो हमें मिल जाएगा। सो इस केस के अंदर हम कह सकते हैं हमें आउटपुट मिलेगा 0th पोजीशन का और फर्स्ट पोजीशन का। चलिए इसको भी रन करते हैं। सो हमने अप्रोच किया सेव एंड रन मॉड्यूल। So first color is red, second color is green, third spelling mistake, or blue. So output will be red and green क्योंकि हमने यहाँ पर इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके सेकंड तक पहुँचने की बात की है। If I skip the second position, in that case it becomes starting from the 0 to last because we have skipped the last index position. So display all items. So save and run module. Starts from the first position, red, green, and blue. So same output as we are expecting it. Starts from the index 0 to the complete output. So as we know, assignment is not possible. We can view it partially. We can view this array as a range part and the same thing. So the main difference between the list and a tuple is that list is editable, but tuple is not editable
we cannot edit the value of tuple after assigning the value, but as the doubt has been raised whether we can accept the data for the tuple or not, so this is the way through which we can accept data for tuple. One more thing, I think it also works here. Suppose, but I'm not taking favor for that. Like if I declare variable color1 equals to like last day we have discussed about the meta table. If we declare many variables, then it becomes quite hectic for our interpreter for the background process. But just for the one color, I have taken the input statement out from this tuple implementation and place my variable name for the value of first color. ये आप सभी को clear हुआ pattern? Yes, sir. In spite of accepting the input, I have declared only one variable outside my collection, but transferred the value of that variable inside the collection. And save and run. So this output is, this prompting is not generated inside the collection. This prompting is generated outside. ये बाहर generate हुआ है. और फिर जो वैल्यू हम, जो कलर हम यहाँ पर बाहर कलर 1 पे प्लेस करेंगे, वो वेरिएबल के जरिए कहाँ चले जाना चाहिए? आपके टपल के पास, ताकि वो चेंज ना हो पाए फिर, क्योंकि टपल चेंज नहीं हो सकता है. रेड ग्रीन, अब वो टपल के अंदर एंट्री ले रहा है. जो सेकंड कलर की एंट्री है वो टपल के अंदर हो रही है. मतलब कलर 1 जो है वो टपल के पास जा चुका था, टपल के अंदर थर्ड एंट्री, और आउटपुट हमारे सामने है. सो टपल में एंट्री करना हो या लिस्ट में एंट्री करना हो, यू कैन गो टू डायरेक्ट एंट्री किसी वेरिएबल के जरिए, या फिर आप डायरेक्ट इनपुट भी अंदर प्लेस कर सकते हैं. क्लियर हुआ सबको ये? Yes, sir. तो ये था हमारा कंसेप्ट टपल के ऊपर कि टपल किस तरह से हमारे लिए वर्क परफॉर्म करेगा. चलिए, तो ये था सेकंड पार्ट ऑफ द एरे. पहला पार्ट हमने लिस्ट देखा था, सेकंड पार्ट था एरे. दोनों में पोजीशनिंग का यूज किया गया था, दोनों का पार्ट था पोजीशनिंग का. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम अलग ही वे से समझेंगे पूरा, वो भी एरे है. और आज के प्रोग्रामिंग्स में जो अब हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एरे, वो सबसे ज्यादा यूज होता है, नाम है डिक्शनरी. उस एरे को कहा जाता है डिक्शनरी. सो PRG6 एरे 6 _ PRG.py. अब जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे उसे एरे के सबसे इम्पोर्टेंट और हैवीएस्ट पार्ट में माना जाता है. उसका नाम है डिक्शनरी. चलिए, तो इसे बनाते हैं. सो हम गए एडिट के पास और हमने बिगिन किया import sys, and the third part of our array, third type of our array is Python dictionary. So Python dictionary is a third part of types of arrays. Very, very, very important. This dictionary is also known as collection of key and value pair. This dictionary is basically a collection of key and value. Very, very important. As we have seen, जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम्स में देखा था, हम इंडेक्स पोजीशंस का यूज कर रहे थे इंडिविजुअली डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए. और आई थिंक कल ही आप में से किसी ने एक डाउट पूछा था कि अगर हमारे पास एरे में 25 to 30 वैल्यूज होंगी तो
उन वैल्यूज में से ये प्रॉपर याद रख पाना, इस चीज को प्रॉपर रिमेम्बर कर पाना कि हमारी वैल्यू किस पोजीशन पर है. सो ऑफ कोर्स द की वैल्यू पेयर इज आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी. वो स्टूडेंट है आज यहाँ पर? यस सर. या एग्जैक्टली, गुड. सो आप ही ने पूछा था कल ये क्वेश्चन? यस सर. हाँ, तो जो आपका कंफ्यूजन था कि 30 to 40 वैल्यूज, ऑफ कोर्स जब आप एरेज बनाते हो इन अ प्रोफेशनल फ्रंट, देखिए जब हम कुछ चीज लर्न करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं तो हार्डली 5 to 6 वैल्यूज में हम लोग अपने प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं. बट जब हम प्रोफेशनल फ्रंट पे काम करते हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट पे तो 100 to 200 वैल्यूज तक हमारे एरे में होती हैं. सो ऑफ कोर्स उस केस में बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज आ जाता है कि प्रॉपर याद रख पाना कि किस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू थी. उसी चैलेंज को सॉर्ट आउट करने के लिए ये एरे बने हैं जिनको पेयर एरे कहा जाता है, की एंड वैल्यू पेयर को. तो चलिए अब इस एरे को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है. तो की वैल्यू पेयर जो एरे है उसको बनाने का तरीका भी थोड़ा सा डिफरेंट है. सबसे पहला हमने स्क्वायर ब्रैकेट समझा, वो लिस्ट को गया. फिर हमने राउंड ब्रैकेट समझा, वो टपल को चला गया. अब कौन बचता है? अब बचता है करली ब्रैकेट. करली ब्रैकेट्स यूज्ड फॉर डिक्शनरी. तो ये स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए यूज हुआ? लिस्ट के लिए. राउंड पैरेंथेसिस यूज हुआ टपल के लिए. अब एक ही बच गया है बाइंडिंग ऑपरेटर, और वो इकलौता बाइंडिंग ऑपरेटर क्या है? करली ब्रैकेट्स. सो डिक्शनरी के लिए यूज होता है करली ब्रैकेट्स. तो 3 तरह के एरेज, 3 तरह की बाइंडिंग्स और 3 तरह के बाइंडिंग सिंटैक्स, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी. बट डिक्शनरी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है की और वैल्यू का पेयर. इस पेयर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, समझिए ध्यान से. इस की और वैल्यू को डिक्लेयर करने का तरीका स्टार्ट होता है माय कलेक्शन के साथ. माय कलेक्शन इक्वल्स टू करली ब्रैकेट्स. अब इस करली ब्रैकेट के अंदर आपको देने हैं की कॉमा वैल्यू, फिर कॉमा सेपरेटर, अगेन द की वैल्यू कॉम्बिनेशन. आप यहाँ पर बाइंडिंग करोगे, आप पेयर्स बनाओगे. ये इसका 0th इंडेक्स पोजीशन है, ये इसका 1st इंडेक्स पोजीशन है, लेकिन आपने उस 0th इंडेक्स पोजीशन को एक आइडेंटिटी नेम दिया है. वो आइडेंटिटी नेम कहलाता है की. ये क्लियर हुआ? यह है 0th इंडेक्स पोजीशन, यह है 1st इंडेक्स पोजीशन. मैं नीचे इंडेक्सिंग लिखता हूँ, जब तक सबको क्लियर ना हो जाए मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. क्लियर हो जाए तो बताइएगा. इंडेक्स पोजीशन 0 पहला पार्ट, इंडेक्स पोजीशन 1 दूसरा पार्ट. बट ये जो की है ये इस 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस 0 का रिप्रेजेंटेटर है. अगर मैं इस की जगह लिखता हूं नेम और वैल्यू पे लिख देता हूं रॉजर स्मिथ, तो इस रॉजर स्मिथ जिसे एक्सेस करने के लिए मुझे 0th इंडेक्स पोजीशन को याद रखना पड़ता, उस 0 को मैंने कहा हट जाओ, मुझे जरूरत नहीं है इस 0 को लिखने की. मैं उस 0 की जगह, मैं इस 0 की जगह एक की नेम का यूज करूंगा, मैं एक की का यूज करूंगा जो मेरे लिए आसान है याद रख पाना. अब ऑफ कोर्स इतना तो याद रखना पड़ेगा कि कीज क्या दी हैं, इसका और कोई उपाय नहीं है. हमें वैल्यूज याद नहीं रह सकती, हमें उसकी पोजीशनिंग याद नहीं रह सकती, लेकिन आपको कीज को याद रखना होगा. नहीं याद रह पाए तो लिख लीजिएगा, बट इसका और कोई उपाय नहीं है. क्लियर हुआ आप सबको? यस सर. या अब फर्स्ट पोजीशन के लिए हमें यहाँ पर वैल्यू क्या है? वैल्यू थी उसका एज 45. अब फर्स्ट पोजीशन पे एज है तो हमने सोचा चलो इसको की दे देते हैं एज, और हमने कहा हम 1 को यूज नहीं करेंगे, हम 1 की जगह यूज करेंगे उसका रिप्रेजेंटेटर. और कौन है 1 का रिप्रेजेंटेटर? एज. So in spite of remembering those index positions, we have a best solution here. हम इंडेक्स पोजीशन की जगह उनकी कीज का इस्तेमाल करेंगे. और यहाँ पर आप सबके सामने देखने में आया है कि कीज आर ऑलवेज इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट.
अब ये अलग बात है, आप सिंगल कोट में लिखना चाहो तो उसको सिंगल कोट पे भी लिख सकते हो, डबल कोट में लिखना चाहो तो डबल कोट में भी लिख सकते हो। एक तरीका हम अपनाते हैं हमेशा, वैल्यू को डबल कोट्स में लिख देंगे जो स्ट्रिंग वैल्यूज होंगी, लेकिन कीज को हम लोग किस में लिखते हैं, सिंगल कोट्स में। याद रखना आसान हो जाता है, जज करना आसान हो जाता है, ये तरीका अपनाते हैं। फिर कॉमा, फिर एंट्री, यहाँ पर फिर हमने लिख दिया है सैलरी, और सैलरी यहाँ पे लिख दी है हमने, अब न्यूमेरिक है, हमने लिख दी यहाँ पर 70,000, और फिर अगेन कॉमा, इसके बाद हमने लिख दिया है एड्रेस। एड्रेस क्या है इसका एड्रेस, सॉरी दिस इज comma, this must be a colon, this must be a colon, key and value, this is the separator, this is the separator। हमने एड्रेस लिख दिया है मॉल रोड शिमला, और डबल कोट्स क्योंकि वो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है मेरी। फिर इसके बाद हमने और क्या ले लिया है, उसका लाइक आधार नंबर। अब मैं स्पेस नहीं दे सकता, की में स्पेस मत देना, ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा। की इज लाइक अ वेरिएबल, हियर द की इज लाइक अ वेरिएबल, सो मैंने जस्ट लिख दिया आधार नंबर कोलन साइन। और आधार भी एक, क्या बताओ जरा, आधार एक स्ट्रिंग होना चाहिए कि एक नंबर होना चाहिए, आंसर भी। ये आधार नंबर है, इसको मैं डबल कोट्स में लिखूं कि विदाउट कोट्स लिखूं? स्ट्रिंग होना चाहिए सर। स्ट्रिंग होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए एग्जैक्टली क्योंकि नॉन कैलकुलेटिव है, हाँ, हम कभी आधार नंबर पे कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सो कॉमा सेपरेटर और अगेन सिंगल कोट, हमने यहाँ पर और आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या रख लिया, वोटर आईडी लिख दिया। वोटर आईडी में हमने लिख दिया है IND 133CC सो एंड सो। सो यहाँ पर एक बहुत ही रिफाइन सा छोटा सा मेरा एक कलेक्शन बना है एक पर्सन की कुछ इंफॉर्मेशन को लेकर। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। एक पर्सन की आइडेंटिटी को या किसी भी चीज को जब हम लोग एक प्रॉपर नेमिंग के साथ बाइंड कर देते हैं, इसे डिक्शनरी कहा जाएगा। अब इसे प्रिंट करवाने का पहला तरीका, पहला तो वही है, हम सीधे सीधे इसको प्रिंट कर देते हैं, लेकिन प्रिंट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा इसका टाइप सही आ रहा है कि नहीं। सो माय कलेक्शन ब्रैकेट और हमने इसको कर दिया सेव और रन। सो इट्स अ डिक्शनरी एंड exit, close। next आफ्टर फाइंडिंग आउट द टाइप, इसे मैंने कमेंट कर दिया, अब मैं इसको पूरा प्रिंट करना चाहूंगा। सो अगेन मैंने लिखा प्रिंट माय एंटायर कलेक्शन, प्रिंट माय एंटायर कलेक्शन। माय कलेक्शन को हमने प्रिंट किया, उसको सेव किया, इसे रन किया। हियर इज योर एंटायर कलेक्शन in a complete format, not in a bifurcated way, but in a complete format। अब मुझे यहाँ पर इसे क्लोज करते हैं, और सपोज करिए हम लोग बहुत नीचे चले गए, अपने प्रोग्राम से बहुत नीचे चले गए, कुछ यहाँ पर चले गए, हम लोग इस जगह पर आ गए। लाइन नंबर एक्टिव कर देता हूँ और हम अपने प्रोग्राम के यहाँ पर आ चुके हैं। कुछ स्टेटमेंट्स कुछ लिखते गए, प्रोग्राम्स तो बहुत बड़े बड़े बनते हैं, 1000-2000 लाइन के, और यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें यहाँ पर प्रिंट करना था हमारे स्मिथ का आधार कार्ड नंबर। अब आप सोचिए, ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है, बहुत ऊपर जाना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि आधार कार्ड किस इंडेक्स नंबर पे था। अगर हम टपल या लिस्ट यूज कर रहे होते तो बहुत ऊपर जाकर देखना पड़ता कि उसका इंडेक्स नंबर क्या था, जैसा कि कल डाउट भी रेज हुआ था। सो किसने डाउट रेज किया था कल? अब आप बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पर ताकि मैं सही आधार नंबर डिस्प्ले कर सकूं। वो है की नेम सर, की नेम। सो
मेरे एरे का नाम है माय कलेक्शन, और इसके बाद राउंड ब्रैकेट्स में, सॉरी हार्ड ब्रैकेट्स में, अब मुझे ध्यान नहीं है कि उसका इंडेक्स पोजीशन क्या था, मे बी मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पर एक फायदा है, आपको इंडेक्सिंग नहीं लिखनी है, आपको लिखना है उसका की नेम। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा की नेम, उसका की नेम क्या था। आपको इंडेक्स नंबर नहीं याद है, मत लिखिए, लाइक मैंने लिख दिया, मे बी शायद 1 पे था, 2 पे था, चलिए देखते हैं। मैंने लिख दिया इंडेक्स नंबर 2 आधार कार्ड, एंड सेव एंड रन। collection 2, track back most calling, line number 33, printing. So we cannot write index position in our collection. Fine, we cannot write the index position because it's a collection of key and value. So अब मैं प्रॉब्लम में कि अब मैं क्या मेंशन करूं, हाउ टू मेंशन द की। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोट्स में मैं उस की का नाम लिखूंगा आधार नंबर, ये था हमारा की नेम। और इतना हमें याद रहेगा कि आधार के लिए हमने क्या लिखा। ऑफ कोर्स इतना आपको मेमोराइज करना होगा कि किस कलेक्शन में क्या कीज के नाम हैं, इसलिए आपको डॉक्यूमेंटेशन, अपने सॉफ्टवेयर का डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहिए। जब भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, नॉट अ स्मॉल वन, एक एक प्रोग्राम वाले नहीं, लाइक पूरा का पूरा ERP जब जनरेट करना होता है, सो हर डेवलपर एक डॉक्यूमेंटेशन शीट बनाता है। आज के टाइम पे तो बहुत आसान हो गया है, हम लोग मोस्टली एक गूगल शीट बना लेते हैं जो शेयर्ड मोड पर होती है, जहाँ पर हम लिखते रहते हैं कि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्या इम्प्लीमेंट्स किया है, कौन कौन से वेरिएबल्स बनाए हैं, कौन कौन से कलेक्शंस बनाए हैं, ताकि दूसरा डेवलपर भी वो गूगल शीट से पढ़ सके। जब पहले गूगल शीट्स नहीं थी तो हम लोग उसके लिए एक डायरी मेंटेन करते थे, बट आज से हम लोग हर चीज गूगल शीट पे डाल देते हैं। लाइक जब इस तरह एक एरे बनाऊंगा तो इस एरे को कॉपी करके गूगल शीट पे पेस्ट कर दूंगा कि ये एरे आज के दिन बनाया गया है, ताकि दूसरा डेवलपर भी इसे देख के समझ सके कि क्या इम्प्लीमेंटेशंस सॉफ्टवेयर में हो रही हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब हमने व्यू किया कि किस तरह से कलेक्शन को लिखा जाता है। कलेक्शन के हार्ड ब्रैकेट्स में इंडेक्स पोजीशन नहीं, वहां पर हम क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ आवर की। क्लियर हुआ आपको? चलिए, Yes, sir. सेव किया और रन किया। So here we got the Aadhaar card number of our collection without shifting on a mess that at which position, at which index position, किस जगह पे हमारी सैलरी है, किस जगह पे आधार है, किस जगह पे क्या है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अब एक भी इंडेक्स नंबर, एड्रेस पता लगाना है, बस आपको अब अपने की नोट्स को एक प्रॉपर ध्यान रखना होगा कि एड्रेस के लिए आप क्या यूज करते हो। फोन नंबर, इतना इंपॉर्टेंट चीज आज छोड़ दिया हमने। आज के टाइम पे मोबाइल कैसे मैं स्किप कर गया। सो मोबाइल, सो लाइक मोबाइल नंबर हमने मेंशन कर दिया। सो उसी तरह से अगर हमें एड्रेस डिस्प्ले करना है तो एड्रेस लिख दिया, हमें मोबाइल नंबर मेंशन करना है तो मोबाइल नंबर लिख दिया। लेकिन अब मुझे ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि किस इंडेक्स पोजीशन पे क्या है। ऑर्डरिंग से मैं पूरा अपने माइंड को रिलैक्स कर चुका हूँ। बाद में एक और एरे कलेक्शन जोड़ दिया, लैंडलाइन, और यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया पर्सन का लैंडलाइन नंबर। सो किसी भी पोजीशन पे जोड़ दें, फाइनली उसे एक्सेस तो होना है की नेम के बेसिस पे। यहाँ पर फिर हमने कहा कि आफ्टर मोबाइल नंबर हमें उस पर्सन का वोटर आईडी दिखाना है। सो वोटर आईडी, वोटर आईडी, सो वोटर आईडी के लिए हमने लिख दिया है वोटर आईडी। अब ये आपके स्किल्स ऑफ कोर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कलेक्शन को क्या नाम दे रहे हो। एंड आई सजेस्ट कभी भी कलेक्शन को एब्रीवेट मत करो। ऐसा नहीं कि नेम को एन कर दिया, एज सैलरी को सेल कर दिया, एड्रेस को ADD कर दिया, मोबाइल को मॉप कर दिया,
लैंडलाइन को LL कर दिया, नहीं। अभी तो ठीक है 6-7 कंटेंट्स हैं, जब होते हैं 100-200 कंटेंट्स, जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो कितने कंटेंट्स एंट्री होती हैं, इंटरनली सब एरे में जाता है ताकि उसको वेरीफाई करके वैलिडेट करके डेटा में ट्रांसफर किया जाए। उस वक्त इस तरह के छोटे छोटे कितने एब्रिविएशंस बनाएंगे आप लोग, तो प्रॉपर नेमिंग यूज करें। अगर डेवलपमेंट करते वक्त टाइम भी लगता है तो वो टाइम वेस्टेड नहीं है आपका। अगर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते वक्त आपका टाइम लगता है तो वो टाइम वेस्टेड नहीं है। आगे जाकर जब सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है या कोई डिबगिंग करनी पड़ती है तब इतना टाइम वेस्ट होता है इन छोटी छोटी चीजों में। उससे बेटर है कि पहले आप स्पेंड करें अपना पूरा टाइम और सॉफ्टवेयर को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड वे पे बनाएं, आपकी उलझन बहुत कम हो जाएंगी। सेव एंड रन। इस तरह से मेरा वोटर आईडी भी आ गया, मोबाइल एड्रेस, आधार, सब कुछ यहाँ पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म पर जनरेट हो गया है। दिस इज कॉल्ड अ की वैल्यू कलेक्शन इन अ पाइथन कॉल्ड डिक्शनरी। क्लियर हुआ आप सबको? सेकंड अगर उसका करना होगा किसी का एंट्री तो वो माई कलेक्शन 2 में आएगी, जैसे नेम रोजर है, अगर दूसरे व्यक्ति का डिटेल डालना है तो। हाँ नहीं, अब जैसे ये तो एक माई कलेक्शन हो गया है। अब आपको अगर इसी में ही मल्टीपल एरेज बनाने हैं तो वो आ जाएगा 2 डायमेंशन एरे। लाइक एग्जांपल, मैंने इस कलेक्शन को लिया और हमने बनाया है रिकॉर्ड बुक। रिकॉर्ड बुक इक्वल्स टू और एक लिस्ट बनाया और वो लिस्ट है कलेक्शन ऑफ डिक्शनरीज। दिस इज द फर्स्ट डिक्शनरी इनसाइड द रिकॉर्ड बुक and comma separator and second dictionary in a record book, but while creating that dictionary इस तरह से यूज किया जाएगा। अभी टफ हो जाएगा इसलिए मैंने टॉपिक नहीं उठाया, बट दिस इज द लिस्ट। दिस इज कॉल्ड, अगर हम थोड़ा सा समझें, यह है सिंगल डायमेंशन एरे और यह है डबल डायमेंशन एरे जहाँ पे 2 एरेज का कलेक्शन है। ये एक लिस्ट हो गई डिक्शनरी, एक दूसरी डिक्शनरी हो गई। ये कॉमा सेपरेटर इन दोनों डिक्शनरी के बीच का सेपरेटर माना जाएगा और इसको हमने लिस्ट पे बाइंड कर दिया है। बट अब क्योंकि बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग लेक्चर ले रहे हैं तो टफ हो जाता, बट इस तरह से वो बाइंड कर सकते हैं। अगर हम लोग मल्टीपल बाइंडिंग्स की तरफ जाएं तो ये रोजर का रिकॉर्ड, ये मे बी जैक का रिकॉर्ड। Jack, the age is 34, salary 45, lives in a old city, Bhopal. So in that case, old city area, the mobile number is so and so, Aadhaar card is not available. And sir, n for keeping n number of record, we have to create a n dimensional array. Exactly. So this is the way a single dictionary or विशाल सर, एक चीज मैं यही जो मैडम जो जिस डायरेक्शन में पूछ रहे हैं, मैं एक चीज और जानना चाह रहा था। इसके लिए बार बार हमको की नेम्स को रिपीट करना जरूरी है? कोई तरीका है यहाँ पर कि की नेम से एक बार बता दें हम? की नेम तो सर रिपीट होनी होंगे, हर बार रिपीट होंगे। हाँ, तभी तो सर फिर इस तरह के एरेज को अवॉइड करने के लिए ही तो माइस्क्यूएल डेटाबेस यूज करते हैं फिर, क्योंकि वहां पे तो हमने एक बार फील्ड्स के नाम दिए और नंबर ऑफ रोज ऐड होती रहती हैं। इन्हीं सब के तो वो सॉल्यूशंस हैं। ये हो गया बिकॉज द नेम ऑफ दिस फैसिलिटी इज ट्रिपल, तो उससे मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ फैसिलिटी हो कि एक बार की नेम्स बता के अपने की वैल्यू कलेक्शन पे तो कीज के नेम रिपीट होंगे ही, क्योंकि तभी तो प्रॉपर वे से एक्सेस हो पाएगा। क्योंकि आप सोचिए ना सर, जब हम इसको लूप में रन करेंगे तो लूप का 0th इंडेक्स पोजीशन नेम और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन नेम तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएगा। अगर इसकी कीइंग अलग हो गई और सेकंड वाले की कीइंग, मतलब जो नेमिंग है, जो की नेमिंग है, अगर अलग हो गए तो लूप तो उसको एक्सेस कर ही नहीं सकता कभी। ठीक है, लूप तो रिपीटेड मोड पे चलता रहेगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं। विशाल सर
एक चीज और पूछना थी सर, अपना जो शेड्यूल है इसमें क्या डेटाबेस से कनेक्टिविटी वगैरह भी है क्या इससे अपनी? नहीं सर, वो तो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, फाइल सिस्टम तक है अपना। अच्छा अच्छा, नहीं एक्चुअली क्या बच्चे जो प्रोजेक्ट वगैरह को यदि बनाएंगे उसमें तो वो शायद डेटाबेस से कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी, तो क्या अपन को इस तरह का नहीं बता सकते सर कुछ? वो तो सर मतलब उसके लिए फिर टाइम थोड़ा कम पड़ जाएगा अपने पास। आगे की ऑर्गेनाइजर इन फ्यूचर अगर हम लोग कंडक्ट करते हैं तो इसमें फिर कवर अप कर सकते हैं अपन इन these 3 to 4 days। बहुत एडवांस हो जाएगा और आई थिंक उतना फिर कॉप अप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इवन for the database connectivity we must aware about the functions, we must aware about the classes, we must aware about the looping, control structures, switch case, many things we have to learn। सर इस लेवल पर यदि बच्चे जैसे करते हैं तो क्या कोई प्रोजेक्ट बना पाएंगे क्या सर? हाँ, फाइल सिस्टम इंक्लूड करूंगा तो उसमें तो वो फाइल सिस्टम पे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट एक और इसमें फीचर है इन केस ऑफ डिक्शनरी। अब एक और फीचर यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो मैं इन प्रिंट्स को यहाँ पे कमेंट कर रहा हूँ। इन प्रिंट्स को हमने कर दिया कमेंट। अब हमने यहाँ पे लिया है एक और प्रिंट स्पेस माय कलेक्शन, प्रिंट माय कलेक्शन, और इस माय कलेक्शन में हमने मेंशन कर दिया है डॉट कीज। सो प्रिंट माय कलेक्शन कीज और हमने कर दिया सेव और रन। सो सॉरी, इनवैलिड सिंटैक्स क्योंकि मैंने ब्रैकेट यूज नहीं किया है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट्स यूज करना पड़ता है। फाइल विथ सेव एंड रन। सो यहाँ पर हमें सब कीज के नाम मिल गए हैं। whatever the keys we have used in our array, जो हमने डिक्शनरी बनाई है, हमारे थ्रू बनाई गई डिक्शनरी में जितनी भी कीज हैं, सिर्फ अगर हमें उन कीज के आउटपुट निकालने हैं तो हमें कीज मिल गई। और इसी तरह से अगर हमें सब वैल्यूज देखनी है थ्रू आउट एट वंस, so there is a function called values. So there is a function called values through which we can view all the values only and save with the run module. So here we have all the values. एक चीज स्टूडेंट से जरूर पूछूंगा, क्या नोटिस कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं? ये कीज और वैल्यूज क्या जनरेट कर रहा है? वो एक लिस्ट जनरेट कर रहा है। आप एक हार्ड ब्रैकेट्स को देखो, जो डिक्शनरी कीज हैं वो कीज की एक लिस्ट बना के जनरेट कर रहा है। डिक्शनरी वैल्यूज जो है वो वैल्यूज की लिस्ट बना के जनरेट कर रहा है। क्लियर हुआ आप सबको? सो अगर हम यहाँ पर ट्राई करें, इफ आई ट्राई इट स्क्वायर ब्रैकेट 4, मे बी मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया, जस्ट एक्सेस कर रहा हूँ कि अगर ये मुझे एक लिस्ट बना के जनरेट कर रहा था तो क्या मैं उसके 4th इंडेक्स पोजीशन को एक्सेस कर सकता हूँ प्रिंट के अंदर? सेव एंड प्रिंट। सो नो, वो एरर दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। आप इस फंक्शन को सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं। तो कोई और तरीका है कि इसको सब्सक्रिप्ट किया जा सके? तो एक तरीका हम सोच सकते हैं यहाँ पर कि हमने एक कलेक्शन बना दिया है डॉलर वैल्यू, सॉरी नॉट डॉलर, वैल्यू लिस्ट इक्वल्स टू माय कलेक्शन वैल्यूज। हमने एक वेरिएबल बना दिया वैल्यू लिस्ट, जिसमें हमने अपने जो डिक्शनरी है उसकी वैल्यूज को ट्रांसफर करवा दिया है। और अगर इसके बाद हम प्रिंट वैल्यू लिस्ट के किसी पोजीशन को देखना चाहें पोजीशन वाइज,
क्योंकि डिक्शनरी और उसके कीज को तो हमने समझ लिया। अब हम उसके थोड़े से टेम्परिंग को समझ रहे हैं कि क्या इसकी वैल्यूज को टेम्पर करके कोई इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। तो दो फंक्शन सामने आए हैं, कीज फंक्शन और वैल्यू फंक्शन, जो हमें रिटर्न करता है लिस्ट। यहाँ पे एक कमेंट बना देते हैं, रिटर्न लिस्ट, और यहाँ पर भी हम हैश कर देते हैं रिटर्न लिस्ट। और वेर लिस्ट वैल्यू के जरिए हमें मिलेगी लिस्ट, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, लिस्ट ऑफ वैल्यूज, और फिर उसी वैल्यू के थर्ड इंडेक्स पोजीशन को हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। ये क्लियर हुआ आप सबको मैं क्या करना चाह रहा हूँ उसमें? मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? यस सर। सो हम गए यहाँ पर सेव और प्रिंट, नहीं तो इसमें भी उसने वही लाइन नंबर 29 पे एरर ही शो किया है, we cannot bifurcate this list, so this list is not able to bifurcate, so this one is generates an error। इसने एक एरर जनरेट किया है, वो एरर है कि हम इसको सब्सक्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, हम केवल इसकी लिस्टिंग को व्यू कर सकते हैं। तो रिटर्न अ लिस्ट फॉर व्यू पर्पस, व्यू ओनली। क्लियर हुआ आप सबको? लिस्ट से रिलेटेड और कोई क्वेरी आप सबकी? नो सर। क्लियर हो गया पूरा? यस सब सर। बताइए, टपल, लिस्ट और डिक्शनरी में से बेस्ट कौन है? अगर मुझे इसके 3 पार्ट्स बनाने हो तो इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है? इनमें से बेस्ट कौन है? सर हर नीड के लिए अलग चाहिए रहेगा। सॉरी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। दरजीत सर आवाज आ रही है मेरी आप सबको? आ रही है विशाल सर, आ रही है। तो सर इनमें से बेस्ट किसको बोले फिर हम लोग? सर ये सबका अपना ओपिनियन रहेगा। अकॉर्डिंग टू मी मुझे तो डिक्शनरी बेस्ट सूटेड लग रहा है मेरे हिसाब से। हाँ तो क्वेश्चन क्या है आपका? मतलब इन तीनों एरेस में से बेस्ट कौन सा है? ओके, यू आर आस्किंग कि लिस्ट एंड टपल एंड डिक्शनरी में से बेस्ट कौन होगा? ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी डिक्शनरी। और लेकिन अगर सर ऐसा बोलो कि जैसे नॉर्मली हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स की, तो सॉर्टिंग टेक्निक्स भी जाती है टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग। ओके, इन केस ऑफ की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो तो ऐसा कह सकते हैं कि as per the situation the picture of the dictionary is clear to us। डिक्शनरी का जो पिक्चर है वो काफी क्लियर है और नीट एंड क्लियर लगता है, बट अगर हमें रीड ओनली बनाना है तो हमारे पास टपल एक तरीका है, और अगर केवल वैल्यूज का कलेक्शन है तो लिस्ट एक तरीका है। जी जी जी। बट अगर अरेंज्ड मोड ऑफ एरे कहें, एरे विद अरेंज्ड मोड, तो वो है डिक्शनरी अपना। यस सर। हमारे पास तो इस तरह से हमारे 3 एरे के पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुए, लिस्ट, टपल और डिक्शनरी। तो अभी तक हमने यूजर से रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस, ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर स्पेशली, और एरेस के तरीके सीख लिए हैं। आज हम अगला टॉपिक जो बिगिन करेंगे वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें इफ एल्स और इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट आज हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर कल का जो सेक्शन रहेगा उसमें लूपिंग हम डिस्कस कर सकें, क्योंकि आगे के टॉपिक में हमें इफ और लूपिंग की जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी ही। सो नेक्स्ट जो अब हम लोग टॉपिक बिगिन कर रहे हैं वो पूरा चेंज हो गया है, एरेस खत्म हुआ यहाँ पर। अब जो टॉपिक हम लोग बिगिन करेंगे वो है
कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसको हम एक सिंपल डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। तो चलिए अब एक नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सर यहाँ पे मैं अभी 2 लाइन बच्चों के लिए कुछ हाँ जी, बोलूंगा। हाँ जी सर, आप पूछो ना। तो मैं भी 2 मिनट का ब्रेक ले लूँ, पानी पी लूँ। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तो हमारा बातचीत भी हो जाएगी। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में सर पढ़ा रहे हैं। तो अच्छा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए और प्रोग्रामिंग में बहुत ही बढ़िया अपने आप को करने के लिए आपको हमेशा एक स्टेप टीचर से आगे चलना पड़ेगा। और मैं जहाँ तक कि देख पा रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट ले भी रहे हैं, और हमेशा आपको आदत बनाना है कि हाँ क्वेश्चंस वगैरह पूछते रहें जब भी आपको डाउट हो, इंटरेस्टिंग इसको बनाना है ताकि बहुत काम आने वाला है। तो प्रोग्रामिंग अच्छा करने के लिए हमेशा आपको सर लाइन लिखे उसका मीनिंग आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाना चाहिए। ताकि मुझे जहाँ तक कि पता है कि आप लोग मोस्ट ऑफ यू हैव कंप्लीटेड सी कोर्स, डेटा स्ट्रक्चर कोर्स, ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि सर के पहले कम से कम चलने की कोशिश करो, और कहीं भी डाउट हो तो क्वेश्चंस रेज करो। ताकि स्टार्टिंग में मैं देख पा रहा था कि 37-38 पार्टिसिपेंट्स थे, और अभी हाँ, 4-5 लोग बाद में अभी चले गए। निकल गए हैं, वही मैं सोच रही थी। आई वाज थिंकिंग कि देखो 37 से 32 हो गए, पता नहीं कौन 4-5 निकल गए। मैडम अपन थोड़ा सा टाइम और क्या ले सकते हैं सर से, जो अपन जो डेटा पार्ट अभी एक्चुअली अपना जो पर्पस है वो मेजर प्रोजेक्ट को लेके है। तो यदि जैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी अपन ने नहीं की तो फिर अपना पर्पस पूरी तरह से हो पाएगा क्या मैडम? अपना जो मेन पर्पस है जो अपन मेजर प्रोजेक्ट के लिए सोचते हैं ना बच्चों के लिए, तो क्या पूरा पर्पस इससे मतलब इस पोर्शन तक लेके अपन कर पाएंगे अपना पूरा, या फिर अपन थोड़ा सा इनको टाइम और लेके जो अपन डेटाबेस से कम कनेक्टिविटी या उनसे कैसे डील करेंगे ये? हाँ, तो अपन सर से आगे के लिए पूछेंगे। अभी सर शायद थोड़ा बिजी रहेंगे, जैसी मेरी उनसे बात हुई थी। देन फिर अपन उनको थोड़ा सा ब्रेक देके फिर नेक्स्ट अटेंड हाँ करेंगे। मैडम, क्योंकि अपना पर्पस पूरा नहीं होगा नहीं तो मैडम, है ना? लेकिन सर मेरा एक सजेशन ये रहेगा हाँ कि हम लोग यदि इसी तरीके से कंटिन्यू यदि सब चीज करवाते चले जाएं, तो मैं जहाँ तक कि देख पा रहा हूँ कुछ बच्चे, बहुत लोग इंटरेस्ट भी नहीं ले पा रहे होंगे। तो मतलब का नहीं होगा। हम लोग क्या कोशिश करें कि बच्चों पे भी कुछ छोड़ दे कुछ चीजें। अभी यहाँ पे कुछ उनको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट मिलने के बाद वो थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे करेंगे, तो प्रैक्टिस करने से उनको कोडिंग में ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और सीखने को मिलेगा। तो फिर थोड़े दिन के बाद जब भी ऐसा लगेगा कि नहीं, बच्चों से एक माइनर प्रोजेक्ट वगैरह करवा के देखे कॉलेज में। हाँ, वो वही मेरा मतलब था कि बच्चे, क्योंकि सर बगैर जो अपन कोई डेटाबेस से कनेक्टिविटी किए हुए तो अपन कोई भी प्रोजेक्ट के लिए अपन एक स्टेप नहीं बढ़ा पाएंगे। ये तो फंडामेंटल तो पूरे क्लियर हो गए इससे। वही मैं भी बोलना चाह रहा हूँ कि फंडामेंटल इनको क्लियर कर लेने दीजिए सर, और बाकी जो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं ना, खुद से भी सर्चिंग करने की एबिलिटी होनी चाहिए बच्चों में, तभी जाके एक क्वालिटी वाली काम हो पाएगा। ठीक सर, ठीक सर। हाँ सर, ठीक है सर। मोक्षिता आज है या नहीं है? आशिका, मोक्षिता? मोक्षिता नहीं है। अच्छा, मोक्षिता नहीं है। नो मैम। ओके, आवाज नहीं आ रही है इसीलिए उसकी। ऋषिका भी नहीं है। ऋषिका नहीं है, ऋषिका से तो मेरी बात हुई थी। है। हाँ, ऋषिका भी है। तो करें कंटिन्यू आगे? जी सर। हाँ सर। अब न्यू टॉपिक बिगिन करते हैं पूरा। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा डिसीजन मेकिंग, जो कि हम सभी जानते हैं इफ एंड एल्स स्टेटमेंट, जहां पर अब हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करते हुए, बाईपास करते हुए प्रोग्राम को आगे स्टेप फॉरवर्ड कर देते हैं। इसे हम कंट्रोल स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग के नाम से ही जानते हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो अब एक न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो dm_prg1, dm फॉर डिसीजन मेकिंग .py। हमने यहाँ पर बिगिन किया हमारा एक नया प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, और इसे ओपन करते हैं। आइडियली import
and sys statement. So कंट्रोल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम जानते हैं कि कंट्रोल स्ट्रक्चर एक फंक्शन इफ और उसके बूलियन ऑपरेंड्स के साथ जुड़ा रहता है, जिसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं. इफ और एल्स इसके बहुत ही ट्रेडिशनल कीवर्ड्स रहे हैं. इफ एल्स इसके बहुत ही ट्रेडिशनल कीवर्ड्स रहे हैं, जहाँ पे हम अपने एक्सप्रेशन और उनकी वैल्यूज के बेसिस पे कंडीशंस और उन कंडीशंस पे की जाने वाली फंक्शनैलिटी को डिसाइड करते हैं. तो सबसे पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कंडीशन और उसके बेसिस पे प्रोग्रामिंग को डिस्कस करना. तो फर्स्ट पार्ट, लाइक हमने मेंशन किया एक बहुत ही सिंपल सा वेरिएबल लाइक डिजिट और मेंशन कर दिया 5. हमने एक वेरिएबल लिया डिजिट और उस डिजिट वेरिएबल पे मेंशन कर दिया 5. अब सिंटैक्स देखें. इफ एल्स तो सबको पता है, डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट है. अब मेरे पास एक स्टेटमेंट है प्रिंट, और मुझे डिजिट को प्रिंट करना है. डिजिट, मुझे अपने डिजिट को प्रिंट करना है. हमने प्रोग्राम सेव किया, हमने इस प्रोग्राम को रन किया, मेरा आउटपुट भी सामने आ गया है. लेकिन मुझे अब मुझे इस प्रोग्राम को डिस्प्ले करना है. इस स्टेटमेंट लाइन नंबर 7, मुझे लाइन नंबर 7 को डिस्प्ले करना है यदि इफ माय डिजिट इज 5 और माय डिजिट इज 7, तब मुझे डिस्प्ले करना है. अदरवाइज मुझे इस डिजिट को डिस्प्ले नहीं करना है. मे बी अगर ऐसा कोई केस हमारे सामने आ रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्प्ले करें, अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तभी हम उस पैटर्न को अपलोड करना चाहेंगे. सो इसके लिए हमने मेंशन किया इफ, हमने मेंशन किया यहाँ पर इफ डिजिट is greater than maybe 5. If digit is greater than 5, अगर ये डिजिट 5 से बड़ा है, if your digit is greater than 5, कोलन साइन, we have कोलन साइन. अब यहाँ पर किसी तरह का कर्ली ब्रैकेट तो होता नहीं है इस प्रोग्रामिंग में. एचओडी मैम, आप मुझे को-होस्ट बनाइएगा. हाँ बनाते हूँ. सो यहाँ पे किसी तरह का कर्ली ब्रैकेट तो यूज होता नहीं है. तो कर्ली ब्रैकेट की जगह यहाँ पे यूज होता है टैबिंग. हम लोग क्या प्रेस करते हैं? टैब प्रेस कर देते हैं. इस टैब को प्रेस करने की वजह से ये इंडेंट हो गई लाइन. इफ की ये स्टेटमेंट, now my statement of if is outlined and the statement which comes under the if are indented. ये इंडेंट पता लगाएगा कि if के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं. So digit is equals to 5. If digit is greater than 5, then print digit. And this colon is a part of syntax. ये जो colon है ये इसी syntax का part है हमारा. चलिए इसको ट्राई करते हैं. डिजिट मेरा 5 है और डिजिट इज नॉट ग्रेटर देन 5. सेव एंड रन. सो ब्लैंक आउटपुट. ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट रन नहीं हुई क्योंकि डिजिट इज नॉट ग्रेटर देन 5. डिजिट इज 5. अब हम इसको रिप्लेस करते हैं और लगा देते हैं डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5. If the given digit is greater than or equals to 5, then we have to print our statement. So go to the file, go to the run module, and now we get our required output. Digit is equals to 5. Clear हुआ आप सबको ये चीज? Yes, sir. So अब अगर इसमें और भी कोई स्टेटमेंट है तो वो इंडेंट ही रहेगी. लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया
temp val equals to my digit into whatever the digit we have into 2, and again print, और मैंने इस print को print of course and print my temp value. My temp value is temp, T-E-M-P, my temp val. So 3 statements we have inside if, and all 3s are intended so that the system detects that these statements comes under the if statement. चलिए पहले से ट्राई करते हैं, फिर इसमें कुछ चेंजेस करेंगे हम लोग। सो पहला डिजिट था 5 इंटू 2 होने से क्या बन गया 10। ये क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। अब मैंने इसका इंडेंट हटा दिया और इस प्रिंट का भी इंडेंट हटा दिया, गैप नहीं दे रहा हूं, बस इंडेंट हटा दिया मैंने। इफ को इंडेंट रखा था बट का इंडेंट हटा दिया और यहां पर कर दिया डिजिट इज ग्रेटर देन 5। क्या आपका डिजिट ग्रेटर देन 5 है? अगर है तो डिजिट को प्रिंट करो और टेम्प के साथ मल्टीप्लाई करो और टेम्प को डिस्प्ले करो। ये माइंड फ्रेम था कि हम चाहते थे कि अगर आपका डिजिट 5 से बड़ा है तो आप डिजिट को प्रिंट करो और साथ ही साथ आपके डिजिट की वैल्यूज को इंटू 2 करके डिस्प्ले करो। बट हमने यहाँ पर अपनी डिजिट की वैल्यू को, डिजिट के एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया। पैरेलल हमने इन 2 इंडेंट लाइंस को, जो इंडेंट थी उनको इंडेंट से हटा दिया। मैंने इनके इंडेंट को खत्म कर दिया। अब देखते हैं क्या ये स्टेटमेंट्स इफ का पार्ट है। अगर ये 2 स्टेटमेंट्स इफ का पार्ट होंगी तो रन नहीं होंगी, लेकिन अगर लाइन नंबर 8 और इंडेंट खत्म हो जाने की वजह से इफ का हिस्सा नहीं है तो ये रन होंगी। इफ तो फॉल्स होने वाला है, लेकिन ये 2 स्टेटमेंट इफ के अंदर नहीं है क्योंकि वो उसके इंडेंट से बाहर आ चुकी है। ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। मतलब अगर आप सबने सी लैंग्वेज पढ़ा है तो अब कुछ ऐसा हो गया है। आई थिंक अब क्लियर हुआ। कुछ ऐसा केस हो गया, इस इफ के पास अब केवल ये इकलौती स्टेटमेंट है। बट पाइथन में डबल कोट्स, ये कर्ली ब्रैकेट डिक्शनरी के लिए यूज होते हैं, कंट्रोलिंग के लिए नहीं। चलिए, तो मैंने इसको किया सेव और रन, तो मुझे आउटपुट मिला 10। क्योंकि क्या डिजिट 5 से बड़ा है? नहीं, तो लाइन नंबर 7 प्रिंट नहीं हुई। बट लाइन नंबर 8 जो है वो इफ के अंदर नहीं आती थी क्योंकि वो इंडेंट नहीं हुई, वो इफ के बाहर की स्टेटमेंट थी। इफ के फॉल्स होने के कारण लाइन नंबर 8 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो अपने नॉर्मल फ्लो पे एग्जीक्यूट हुआ। सेम लाइन नंबर 9 अपने नॉर्मल फ्लो पे एग्जीक्यूट हुआ और उसने आउटपुट जनरेट कर दिया माय टेम्प वैल्यू 10। अब अगर मैं इस स्टेज पर इन दोनों को इंडेंट कर दूं तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट अब रन होंगी? नहीं, क्योंकि अब ये इफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर जरूर अब आप लोगों को थोड़ा सा जो राइटिंग स्किल्स हैं वो ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इफ और लूपिंग में कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, इंडेंट का ही पूरा पैटर्न है जो ध्यान रखना पड़ता है। तो सर इंडेंट देने का तरीका क्या है? मतलब उनको एक ही सीक्वेंस, यहाँ पे टैब दबान जैसे मेंशन किया और टैब प्रेस किया। अब जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब अगर हम सी लैंग्वेज, जावा, पीएचपी लिखते तो कुछ ऐसा करते इनको बाइंड करने के लिए। यहाँ पर इंडेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। जो इफ के बाहर है वो इंडेंट नहीं होनी चाहिए, वो इस तरह से बाहर होनी चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड ऑफ माय प्रोग्राम,
तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये इफ का हिस्सा नहीं है तो इसको बाहर होना होगा, ये बाहर हो गया इफ से। तो ये तरीका है, ये इफ के अंदर है लेकिन ये इफ के बाहर का हिस्सा है। रन। सो digit 5 वैल्यू 10 एंड ऑफ माय प्रोग्राम। और अब अगर मैं यहाँ पर जी लिखना था केवल, अब अगर मैं डिसीजन गलत कर दूं, डिजिट इज 5, डिजिट इज ग्रेटर देन 5, फॉल्स, कुछ रन नहीं होगा लेकिन आउटपुट मिलेगा एंड ऑफ माय PRG। सेव किया, रन किया, एंड ऑफ माय PRG। सो इस तरह से ये डिसीजन मेकिंग का पहला हिस्सा हमारा इम्प्लीमेंट हुआ। क्लियर हुआ आप सबको? हाँ जी। यस सर। अब इसी में ही आगे बढ़ते हैं, इसका एल्स हिस्सा इसी प्रोग्राम में देख लेते हैं बजाय कि अगले प्रोग्राम की तरफ जाएं। हमने लिखा इफ योर डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ऊपर मैं कमेंट कर देता हूं पूरा सेक्शन, इसको हमने पूरा कमेंट कर दिया। If digit is greater than 5 colon sign, so value equals to whatever the digit we have multiplied with 2, else colon value equals to digit multiplied with 3। if से else से बाहर आए, print final value is our value। ये प्रोग्राम आई थिंक बहुत ही सिंपल सा फ्रेम किया है इस प्रोग्राम को। हमारे डिजिट की वैल्यू है 5, हमने चेक किया क्या डिजिट की वैल्यू 5 से बड़ी है, जवाब मिला नहीं, 5 से बड़ी नहीं है, वो तो बराबर है। क्या डिजिट की वैल्यू, या चलिए 5 5 बहुत कंफ्यूजन ना हो जाए, लेट्स मेक इट 3 ओनली। डिजिट की वैल्यू क्या है? 3। क्या आपके डिजिट की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है? इज द वैल्यू ऑफ डिजिट इज ग्रेटर देन 5? इज इट ट्रू और फॉल्स? एज पर द करंट स्टेट इट इज फॉल्स, वो 5 से बड़ी नहीं है, तो वो एल्स की तरफ जाएगा और वैल्यू में असाइन करवाएगा डिजिट मल्टीप्लाइड विद 3। लेकिन प्रिंट एल्स का हिस्सा नहीं है, प्रिंट उसके बाहर है। प्रिंट ना इफ का हिस्सा है ना इस एल्स का हिस्सा है। ये इफ और एल्स केवल लाइन नंबर 12 से स्टार्ट होगा, लाइन नंबर 15 तक है, जिनके अकॉर्डिंग डिजिट के साथ या तो 2 मल्टीप्लाई होगा या 3 मल्टीप्लाई होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपका एक्सप्रेशन ट्रू है कि फॉल्स। क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। सेव किया और रन किया, आउटपुट मिला 9, मतलब इस वक्त 3 into 3 हुआ है और आउटपुट क्या मिला हमें? 9। बट अगर हम यहाँ पर 3 को कर दें 10, अगर डिजिट की वैल्यू रिप्लेस करके 10, तो डिजिट इज ग्रेटर देन 5, ट्रू और फॉल्स? नाउ इट्स digit is greater than 5, yes, it is greater than 5। पाइथन प्रोग्रामिंग का यही बेनिफिट है कि वो काफी आसान है। सो डिजिट इज ग्रेटर देन 5, सो वैल्यू इक्वल्स टू डिजिट मल्टीप्लाइड विद 2। सो डिजिट इज 10, 10 मल्टीप्लाइड विद 2 becomes 20 और आउटपुट हमें फाइनल मिलेगा 20। सो गो टू जस्ट फाइल, सेव योर प्रोग्राम, गो टू रन and run your module। Here we got our output 20। So this is the way how we can write if or else statement in Python, which is very simple. Even I think school going kids are also familiar with these such type of statements. That's why CBSE has included Python also in their syllabus. My daughter is in a 6th standard now and she has a Python in their syllabus, but she is not interested to learn with me। So this program is clear to everyone? Yes sir. Yes sir.
चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. So this is called the if and else, if statement and else statement. So close करते हैं इस प्रोग्राम को, exit, और नेक्स्ट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं. Go to the new and text. So DM for decision making underscore prg2.py and make it yes, and right click with the IDLE. So import sys. अब नेक्स्ट प्रोग्राम if else पे ही करते हैं. नेक्स्ट प्रोग्राम if else पे ही करते हैं. और if और else का तीसरा पार्ट क्या आता है? if else if else if else if, जो कि मल्टीपल else स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है. if value is not A, so if value is not B, if value is not C, so the third statement is whether it is other part. So clear हो रहा है सबको? Yes, sir. Yeah. So हमने यहाँ पर एक पैटर्न बनाते हैं, a very interesting program, digit 1. So our program is going to start with digit 1 equals to int. Of course, now in this program, I'm going to bind my previous programs topics also. Input, enter first digit, then digit 2 equals to int, input, and enter second digit. 2 digits we have accepted. Now I want to prompt to our user, print first digit is digit 1, print second digit is digit 2. Now next program is our print. Please select any one option. Now options are we have to write consecutive print options. This is called a menu driven program. 2 options we are using. So first option is addition. So press 1 for addition. Press 1 for addition. Press 2 for subtraction. Press 1 for addition. Press 2 for double quotes is missing here. Let's open line numbers also because this is quite lengthy program. Press 1 for addition. Press 2 for subtraction. Now, to accept this data, we have to write option variable equals to just input with bracket. Enter your choice. Enter your choice. सबको क्लियर हो रहा है प्रोग्राम? हमने यूजर से यहाँ पे 2 डिजिट्स एक्सेप्ट करवाए. सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. क्योंकि ये हमारा आज का फाइनल प्रोग्राम है और बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले मैंने यूजर से 2 डिजिट्स एक्सेप्ट करवाए, फिर मैंने वो दोनों डिजिट अपने यूजर को डिस्प्ले करवाए. डिस्प्ले करवाने के बाद मैंने यूजर को एक मेन्यू ऑप्शन दिया कि आप कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करो कि आपको एडिशन देखना है कि सब्ट्रैक्शन देखना है. और इनपुट के जरिए ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे इंट लगाना है ताकि वो एक न्यूमेरिक वैल्यू भरेगा.
मैंने इनपुट के जरिए यूजर से वो चॉइस एक्सेप्ट करवा ली है कि उसकी चॉइस क्या है। अब मैं यहाँ पे डिसीजन लूंगा। अगर ऑप्शन इज इक्वल्स टू फॉर ऑपरेटर इक्वल्स टू ऑपरेटर, अगर हमें यहाँ पर यूजर से इक्वल्स टू एक्सप्रेशन चेक करवाना है कि वैल्यू इज इक्वल्स टू द पर्टिकुलर वैल्यू और नॉट, तो जैसी अदर प्रोग्रामिंग्स है वो भी यहाँ पर रहे डबल इक्वल्स टू 1। इफ द ऑप्शन वैल्यू is equals to 1, if the value of option is 1, so calculate add equals to digit 1 plus digit 2 and print addition is add else। अब else का मतलब ये यहाँ पर नहीं है कि यूजर ने 2 ही एंटर किया हो। क्या हमारे कीबोर्ड में 2 के अलावा और भी कीज होती हैं? एग्जैक्टली 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मे बी उसने कुछ और एंटर कर दिया हो। तो सिर्फ एल्स में जाने का ये मतलब नहीं है कि यूजर ने 2 ही एंटर किया होगा। तो हम यहाँ पे यूजर की सेकंड चॉइस को भी चेक करेंगे कि अगर वो 1 नहीं है, प्रोग्राम एल्स में कब जाएगा? जब पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। जब हमारा पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा तब यूजर का प्रोग्राम एल्स की तरफ प्रोसीड करेगा। एल्स में जाने का ये मतलब कंडीशन सेकंड वाली ही ट्रू है, तो हम सेकंड को भी चेक करेंगे। ELF मींस एल्स इफ, इसको लिखा जाता है ELF के तौर पे, which is called else if। else if option is equals to 2. If it is 2, so perform subtraction equals to digit 1 minus digit 2, then print your subtraction is sub. Now main case, if the value is not 1, program jumps to line number 19. If the value is 2, execute it. But what happened if the value is even not 2? If the given value, if the given choice by the user, if the choice given by the user के थ्रू जो choice दी गई है वो 1 और 2 नहीं है, 1 है, no, else if क्या वो 2 है, no, तो वो हमारे फाइनल एल्स की तरफ जंप करेगा, जहां पर हम यूजर को कहेंगे इनवैलिड चॉइस गिवन, इनवैलिड चॉइस एंटर्ड, और ये एक एरर है। So of course error invalid choice enter, user को दिखेगा invalid choice enter program, finally print final statement। So I think ये पहला प्रोग्राम है जो इतना लेंथी क्या है हमारा, और of course हमने पिछले 2 दिनों में इतना लर्न किया है उसको पूरा यहाँ पे क्लब कर दिया है। End of PRG, end of today's session। So इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बताइए इस चीज में किसी को कोई डाउट आया है इफ, ELSF और एल्स में? तो पहले पूछे कुछ कंफ्यूजन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर है ये? यस सर। क्लियर है आप सबको? यस सर। यस सर। तो अब हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपना, और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और व्यू करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या न्यू टर्म्स इंक्लूड हुए हैं। सो हमने इसको किया सेव और किया रन। इनवैलिड्स रीजन मैं कोलन यहाँ पे स्किप कर गया, आई स्किप द कोलन साइन।
Again else के आगे है ना, हाँ, and run module. Enter first digit 45, yeah, small values. My program started with accepting 2 values from user, then 2 digits output by the for the user, then the choice and other thing. First value 10, second value maybe 8. See this program. First digit is 10, second digit is 8. Please select any one option. 1 is addition, 2 is subtraction. Please enter your choice. Program is going as per decided flow. First, it's given 2 outputs, then ask to our user what exactly you want to view. If you want to view addition, enter choice 1. If you want to view subtraction, enter choice 2. I'm going to enter 2. So the output is subtraction, and the 10 minus 8 is 2, and end of today's session. But let's execute it 2 or 3 times more. Again run. First value is 10. Second value is maybe 4. What exactly I want to view? I want to view at 1. So the output is 14. 10 plus 4, 14. Now I'm going to execute it again with a 100% invalid choice. Go to run module. First value 10, second value 5. Enter your choice. The choice is going to be 7 out of our bounds. This not comes under our bounds. So our choice is not inside bounds, neither 1 nor 2. So error, invalid choice entered. This is the flow. Clear हुआ आप सबको? Yes, sir. So this is the decision making, a flow or a programming flow, a user interactive programs which we can design our applications. So always try to design such type of applications which are more interactive. Inputs, accept multiple inputs from user, prompt them that what they want to do, वो क्या करें, क्या ना करें, press 1 for this, press 2 for that. मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स बनाएं, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स के लिए भी, और काफी अंडरस्टैंडेबल होते हैं आपके प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए। कुछ है इसमें से किसी का भी कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी? नो सर। क्लियर है आप सबको? यस सर। तो इस तरह से हमारे अभी तक एरेज का टॉपिक एज वेल एज हमने अपना कंप्लीट किया है टॉपिक ऑन डिक्शनरी है, इफ एल्स और इफ एल्स इफ के साथ। तो आज आप इतनी प्रैक्टिस करें ऑफ कोर्स, ताकि कल हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा लूपिंग के ऊपर, और लूपिंग के साथ हम लोग एरेज के टॉपिक को दोबारा जोड़ देंगे, क्योंकि लूपिंग और एरेज एक दूसरे से कनेक्टेड टॉपिक ही होते हैं। और फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग फाइल सिस्टम। तो अब इसकी प्रैक्टिस कल जरूर करें, आज जरूर करें। पाइथन सबने इंस्टॉल किया अपने सिस्टम्स पे या ऑनलाइन ट्राई किए? कल के प्रोग्राम्स ट्राई किए आप सबने? यस सर। सिर्फ एक ने ट्राई किया, बाकी लोगों का क्या हुआ? यस सर, ट्राई करा था। क्या एरर्स आए आपके देखने में? कोई एरर्स आए, कोई प्रॉब्लम फेस करी? नहीं सर, हो गया था, मतलब सिंपल ट्राई करे थे तो आ रहा था करेक्ट आउटपुट। ग्रेट। अब आज इस प्रोग्राम, आज के तो हमारे प्रोग्राम्स भी काफी हैवी थे। ऑफ कोर्स डिक्शनरी वाला बहुत अच्छा प्रोग्राम था, और फिर ये वाला प्रोग्राम भी काफी इंपॉर्टेंट बना है, जहाँ पे हमने यूजर से इंटरैक्टिव प्रोसीजर और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स। सो इन प्रोग्राम्स को ट्राई करिएगा पूरा, और कल 1-2 प्रोग्राम्स और भी बनाएंगे। अभी टाइम है 10 मिनट, बट मैं नहीं चाहता बहुत हेक्टिक हो जाए। इन सभी प्रोग्राम्स को आज ट्राई करिएगा जरूर। कल आई थिंक 11:30 पर है हमारा सेशन। रजनीश सर
यस सर, यस सर। है ना, कल 11:30 पर है। सो कल 11:30 पर हम दोबारा कनेक्ट होंगे, एक दो प्रोग्राम्स और बनाएंगे इफ एल्स के, और फिर लूपिंग को कंटिन्यू करते हुए कंट्रोल स्ट्रक्चर को कल पूरा फिनिश करेंगे। तो कल तक अभी तक जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं जरूर उन सब की प्रैक्टिस कर लें, ताकि कल एक नए माइंड फ्रेम से हम प्रोग्रामिंग को कंटिन्यू कर सकें। स्टूडेंट्स एक अनाउंसमेंट है, कल का जो ये फर्स्ट सेशन है वो 11:30 से है, जो कि पाइथन पे है, और सेकेंड जो है वो अपना इस पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर है। मेरे ख्याल से 3 to 5 है स्नेहता मैडम, 4 to 5:30। 4 to 5। ठीक है, तो आप लोगों को सारे स्टूडेंट्स को सारे CR डिक्लेयर करें। कल मुझे इतनी कम अटेंडेंस नहीं चाहिए, सारे बच्चे प्रेजेंट होने चाहिए दोनों सेशन में। यस मैम। ओके, थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू, लेट्स कंक्लूड द सेशन। ओके, थैंक यू विशाल सर। मैडम। लेट्स मेक